Good afternoon students, welcome to today's video lecture on trigonometric functions। पिछले दो वीडियो लेक्चर से हम जेईई मेंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने सॉल्व किए। आज भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जेईई मेंस में आ चुके हैं वो हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, पहला क्वेश्चन आता है सम ऑफ solutions of the equation 8 cos x into cos of 8 cos x into 8 cos x into cos of, ये पूरा ब्रैकेट है, pi by 6 plus x into cos of pi by 6 minus x minus half equal to 1 and close 0 to pi is k pi, then find k। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ओके, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन क्लोज 0 to pi, तो इधर वेरिएबल x है तो x किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 to pi। तो पहले लिख दो हियर x belongs to close 0 to pi, x belongs to close 0 to pi। Okay, here x belongs to close 0 to pi। given equation क्या है, therefore 8 cos x into cos of pi by 6 plus x into cos of pi by 6 minus x minus half is equal to 1। now cos of, आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, cos of x plus y into cos of x minus y क्या होता है, cos square x minus sin square y, को इधर लगाओ इधर। so therefore 8 cos x into cos of pi by 6 मतलब cos square of pi by 6 minus sin square of x minus half is equal to 1। okay, now cos pi by 6 क्या होता है, now cos pi by 6, cos pi by 6 is cos 30 degree, sin 60 मतलब root 3 by 2, so root 3 by 2 का स्क्वायर, root 3 by 2 का स्क्वायर मतलब सीधा 3 by 4 लिख दो। ओके, सीधा 3 by 4 लिख दो। ओके, तो कितना आएगा, therefore 8 cos x into कितना आएगा, वो आएगा root 3 by 2 the whole square minus sin square x minus 1 by 2 is 1। okay, so what we get, 8 cos x into 3 by 4 minus sin square x minus 1 by 2 is 1। अब ये इक्वेशन है, तो जब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 cos x है तो sin square x को मैं क्या लिख दूंगा, 1 minus cos square x, तो पहले वो लिख देंगे। so 8 cos x एक्चुअली यहाँ से लिख देना चाहिए था, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ से हमको 1 minus cos square x लिख देना चाहिए था। But these ideas you will get once you solve these typical questions। Okay, then only you will get the idea। so right, अब इसके बाद अब देखो क्या होगा आगे। so 8 cos x into कितना है, 3 by 4, इधर से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 8 cos x into 3 by 4 minus 1 plus cos square x minus 1 by 2 is 1। now what you are going to do is take the LCM, the whole term of the bracket, ये जो bracket है उसमें denominator का LCM क्या है, 4। so 8 cos x पर LCM क्या है, 4। so 3 minus 4 plus 4 cos square x plus 4 cos square x minus 8, 3 minus 4 plus 4 cos square x minus 2 आएगा, whole upon 4 is equal to 1। शांति से सॉल्व करना पड़ेगा। so 8 cos x in कितना आएगा, 4 cos square x, 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3। okay, और यहाँ पे आया और 4 is equal to 1, 4 मतलब so 2 cos x into 4 cos square x minus 3 is 1। again be correct, what is cos 3x, 4 cos 2x minus 3 cos x, cos x अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 2 वैसे ही रहेगा और 3
2x minus 3 cos x equal to 1. ये फॉर्मूला सीधा किसका है? cos 3x. So 2 times cos 3x is 1. Okay. So 2 times cos 3x is 1. So what is cos 3x? So what is cos 3x? Cos 3x is 1 by 2. Cos 3x is 1 by 2. Now here solution lies in close 0 to pi. So can I say 0 less than equal to x less than equal to pi? इसको याद रखना. result number 1 cos 3x is 0 less than equal to x less than equal to pi. So multiply by 3 which is greater than 0. Can 3 into 0 less than equal to 3 into x less than equal to 3 into pi. So what we are left with? So therefore 3x किसके बीच में है? 0 to 3 pi. और हमको वहां पे cos 3x मतलब cos is 1 by 2. 1 by 2 मतलब cos is 1 by 2. तो इसका जो भी एंगल होगा वो cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री cos pi by 3 हाफ होता है. So pi by 3 होगा या मल्टीपल ऑफ pi by 3 होगा. And cos is greater than 0. Here cos 3x is greater than 0. So 3x is in first or fourth quadrant ASPC. Okay. अब since 0 less than equal to 3x less than 3 pi है तो पहले हम क्या करेंगे? हम इंटरवल कौन सा बताएंगे? हम इंटरवल बताएंगे 0 less than equal to 3x less than 2 pi. क्या करेंगे? Yes. So 0 included 0 close circle यहाँ पे आएगा. यहाँ पे pi by 2 pi 3 pi by 2 और fourth quadrant में यहाँ पे 2 pi but open circle. So now it is cos 3x is 1 by 2. So it is pi by 3 आना चाहिए. First quadrant में second quadrant cos negative 2 pi by 3 not allowed. यहाँ पे pi plus pi by 3 करना 2 pi by 3 के बाद 4 pi by 3 और शॉर्टकट मैंने क्या सीखा था pi plus pi by 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4 pi by 3 के बाद क्या है 5 pi by 3 और 5 pi by 3 अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा 2 pi minus pi by 3 कितना 5 pi by 3. आपको मल्टीपल्स तो याद है तो यहाँ पे उतना अब टेंशन नहीं है. So 5 pi by 3. So cos of 3x is half और इस इंटरवल में 0 to 2 pi में 0 to 2 pi में 0 less than equal to 3x less than 2 pi. तो इस इंटरवल में cos 3x is half. So therefore add cos of pi by 3 is also half. Cos of 5 pi by 3 is also half. ये इंटरवल x का नहीं है, ये इंटरवल 3x का है. उस लॉजिक से 3x क्या आएगा? 3x आया पहला वैल्यू pi by 3 और 3x का दूसरा वैल्यू आया 5 pi by 3. तो x का वैल्यू क्या आएगा? pi by 3 by 3 pi by 9 और x का वैल्यू क्या आएगा? 5 pi by 9. याद रखिए. फिर सेकंड इंटरवल कौन सा बच गया? सेकंड इंटरवल कौन सा बच गया? 0 to 3 pi है x 0 to 3 pi है. So we have covered 0 to 2 pi. What remains? 2 pi to 3 pi. So 2 pi less than equal to 3x less than equal to 3 pi. और cos 3x कितना था? So it covers 2 pi included a. यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? pi by 2 प्लस ऐड करो 4 so pi by 2 आना चाहिए. और यहाँ पे कितना आएगा? ऑड मल्टीपल so 3 pi. cos 3x कितना है? cos 3x is 1 by 2. cos 3x is 1 by 2 so it is a multiple of pi by 3. तो इधर अगर चाहिए तो अब इसके फॉलो बाय टेक्निक 5 by 3 के बाद 6 pi by 3 6 और 3 कैंसिल होगा नॉट अलाउड 7 pi by 3 आएगा. और अगर आपको डायरेक्टली पता तो 2 pi प्लस मैंने क्या बोला था अगर मल्टीपल ऑफ थीटा चाहिए तो इधर क्या आएगा a प्लस थीटा. तो इधर कितना आना चाहिए 2 pi प्लस pi by 3 which will be how much? 3 pi. Okay. Yes. Cos is positive so cos 3x is half. Cos of 7 pi by 3 is also half. So therefore 3x is 7 pi by 3 only. So x will be 7 pi by 9. So three values of x are. So three values of x which are possible 0 to pi के अंदर. तो कौन कौन से है? 5 by 9, 5 by 9, 7 by 9. So
values of x in close 0 to 5 will satisfy the equation. Values of x will satisfy the equation. Values of x in close interval 0 to 5. कौन सी है? pi by 9, फिर है 5 pi by 9 and then 7 pi by 9. Yes or no? Yes, 7 by 9. Now sum of all these values. Sum of values of x in close 0 to 5 कितना था? K pi, if I am not wrong, is K pi is K pi. Yes. So add your therefore pi by 9 plus 5 pi by 9 plus 7 pi by 9 is K pi. And then we will solve and get the answer of A. We get the answer of A. What is the common denominator? 9. So 9 will have 5 plus 5 pi plus 7 pi is K pi. So what do you get? 7 pi plus 5 pi. 7 pi plus 5 pi is 12. 13 pi. 13 pi by 9 is K pi. Pi pi gets cancelled. 13 by 9 is K. So K is 13 by 9. Yes. Is that the answer? K is 13 by 9. अब देखो इसमें आप कौन सा शॉर्टकट लगाओगे? आपको क्या करना है? यस, इधर ये सारे सम्स में आपका बेसिक नॉलेज चाहिए. अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है, जो शॉर्टकट्स मैंने आपको सिखाए हैं, अगर आप नहीं अप्लाई करोगे, then you will not get the solution. Okay, now let us move forward and do more such questions. Okay, now okay, if 0 less than equal to x less than pi by 2, if 0 less than equal to x less than pi by 2, then find number of values of x, then find number of values of x for which then find number of values of x for which sin x is given, for which it is given sin x minus sin 2x plus sin of 3x equal to 0. मतलब हमको how many values of x satisfy करेंगी 0 less than equal to x less than pi by 2. मतलब x is equal to 0 but x is not equal to pi by 2. So x belongs to close 0 to pi by 2 नहीं आएगा, belongs to close open 0 to pi by 2. पहले वो लिखते हैं here 0 less than equal to x less than pi by 2. Result number 1. And इस इक्वेशन को सॉल्व करना. sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0. आपको पता है sin 3x और इसका हम पहले करेंगे sin 3x plus x में ऐसा क्वेश्चन है minus sin 2x is 0. कौन सा फॉर्मूला इससे लगाएंगे? sin a plus sin b डायरेक्ट लगा सकते हो. So you have sin a plus sin b and let's write the formula 2 into sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 लगाना है, तो मैंने अंडरलाइन किया है, and sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, वो लगाओ. क्योंकि वहां पे sin 3x plus sin x में लगाने पर क्या है 2 times sin of 3x plus x. What is this case? नहीं पहले बात करते हैं. So 2 times so sin 3x plus sin x 2 into sin of 3x plus x 4x by 2 sin 2x into cos of 3x minus x 2x by 2 is x minus sin 2x. Very good. It's easy. Sin 2x is common. 2 cos x minus 1 is 0. Therefore sin 2x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is 0. So sin 2x is 0 और cos x क्या आएगा? cos x आएगा 1 by 2. अब इधर आप देखो कि टिपिकल वैल्यूज है, इससे
जनरल सॉल्यूशन में नहीं जाना है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए काम करना है। यस और नो? दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है हियर 0 लेस देन इक्वल टू x, ओके, हियर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाय 2। तो 0 और पाई बाय 2 में अगर आप जानते हो, खाली x के बारे में बता रहा हूं, 0 इंक्लूडेड, सो 0 डार्क सर्कल, पाई बाय 2 नॉट इंक्लूडेड, सो ओपन सर्कल, 0 टू पाई बाय 2 x का इंटरवल है, ओके। सो cos x is half, now cos x is half, cos x is half, तो ये किसका मल्टीप्लाई है? 0 टू पाई बाय 2 में, 0 टू 90 डिग्री में cos 0 तो 1 होता है, cos 0 तो 1 होता है, तो cos ऑफ वन साइन तो 0 डिग्री और 90 डिग्री है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में हमको हाफ देता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, एंड cos पाई बाय 3 is also half, so you can write cos x is cos pi by 3, therefore x is pi by 3। ये पहला वैल्यू आया, ये पहला वैल्यू आया, yes or no? yes, right। now sin 2x is equal to 0 हमको सॉल्व करना है, sin 2x is equal to 0 हमको सॉल्व करना है। दो वैल्यूज आए थे, sin 2x is 0 और cos x is half, cos x is half आया, सॉल्व। now and 0 less than equal to x less than pi by 2, sin 2x मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, so multiply by 2 which is greater than 0, 0 और pi के बीच में आएगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। so how much we have written? 0 less than equal to 2x less than pi, be very careful, 2x equal to 0 है, 2x equal to pi नहीं है, ध्यान देना, ओके। अब अगर आप देखो तो 2x का ये रेंज है, ये 2x का रेंज है, 0 इंक्लूडेड, यहाँ पे पाई बाय 2 भी आएगा और यहाँ पे पाई नहीं आएगा, इसलिए ओपन सर्कल या पाई इधर रखते में ऐसे ओपन बता रहा वो भी चलता है, पाई ओपन सर्कल। ये पूरा रेंज किसका है? ये पूरा रेंज किसका है? 2x का, एंड हियर वी आर हैविंग sin 2x is 0 एंड हियर sin 2x is 0, तो 0 less than equal to 2x less than 0 less than equal to 2x less than pi है हमारे पास, तो 0 और pi में sin कहाँ पे 0 होता है? sin a और a dash पे 0 होता है, but 0 is included, pi is not included, for मैं क्या लिखता हूँ? sin 0 is 0, x cannot be pi, therefore sin 2x is 0, therefore 2x is 0, only 2x is 0, 2x is 0 मतलब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू कितना आएगा? 0, so for sin 2x is 0, इधर खत्म करेंगे, now therefore कितना था? sin 2x is 0 for 0 less than equal to 2x less than pi, sin 0 क्या होता है? 0, sin pi भी 0 होता है, but it is not included, equal to नहीं है, therefore sin 2x is sin 0, therefore you can directly write 2x is 0, therefore x is 0। x के कौन से वैल्यूज आते हैं? x का पहला वैल्यू कितना था? पाई बाय 3 और x का दूसरा वैल्यू आया 0, so how many values of x? 2, so 2 values, yes or no? So 2 values of x are possible, so therefore 2 values of x, अब वैल्यूज भी दिए हमने pi by 3 और 0, इजी अब नहीं है, पर फिर भी आराम से सॉल्व करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ ओके, वन मोर such question I will solve। find sum of all values of theta belonging to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 satisfying equation that sin square 2 theta plus cos raised to 4 2 theta is equal to cos raised to 4 2 theta is equal to 3 pi,
ओके मतलब वी वांट टू फाइंड, पहले तो सारे थीटा निकालने पड़ेंगे और थीटा क्या वैल्यू ऊपर इंटरवल 0 to π/2 में होना चाहिए और वो थीटा कौन सा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। तो पहले तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यूज ऑफ थीटा निकालने पड़ेंगे और वो सारे वैल्यूज ऑफ थीटा ओपन इंटरवल 0 to π/2 में आने चाहिए और फिर उन सबका हमको सम निकालना। ओके सो कैसे सॉल्व करोगे? हियर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ओके नाउ ये थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। sin square of 2 theta plus cos raised to 4 of 2 theta is 3/4, it is given। सोचो क्या करोगे इसमें, जस्ट वन मिनट। थिंकिंग इजी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, दो स्टेप के अंदर यू कैन गेट द आंसर, राइट? इट इज नॉट दैट मच टफ, पर अगर आप इसको आराम से सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, you will definitely get the answer। okay अब सॉल्व। यहाँ पे sin square टू थीटा है, यहाँ पे cos raised to 4 टू थीटा है, तो यहाँ पे cos raised to 4 और यहाँ पे sin square है, तो ये cos square टू थीटा का स्क्वायर है, ये cos square टू थीटा का स्क्वायर है, तो sin square टू थीटा में क्या बनेगा 1 माइनस cos square टू थीटा। ना sin square अल्फा क्या होगा, sin square x क्या होगा 1 माइनस cos square x, therefore sin square टू थीटा क्या होगा 1 माइनस cos square टू थीटा प्लस cos raised to 4 टू थीटा is 3/4। okay open the brackets, 1 minus cos square टू थीटा प्लस cos raised to 4 टू थीटा is 3/4। अब क्या करो, तो 4 है तो भाई टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई each term by 4, multiply both sides, multiply both sides by 4, so 4 minus 4 cos square टू थीटा plus 4 cos raised to 4 टू थीटा, यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब क्या करो, 3 को राइट साइड लेके आ जाओ, 3 को लेफ्ट में लेके आ जाओ, so that everything becomes 0, so that everything becomes 0, so therefore we are left with 4 raised to 4 times cos raised to 4 to theta minus 4 cos square of 2 theta plus 4 minus 3, actually डायरेक्टली बात लिखना चाहिए, so 4 cos raised to 4 2 theta minus 4 cos square 2 theta plus 1 is 0। Can you recollect what is this? Can you identify what is this? Actually this is a perfect square, a square minus 2 will be plus b square, this is 2 cos square 2 theta का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into cos square 2 theta into 1 plus 1 the whole square is 0, so a square minus 2 will be plus b square, तो ये हो जाएगा 2 cos square 2 theta minus 1 the whole square is 0। अब किसी का भी स्क्वायर 0 तो नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, so 2 cos square 2 theta minus 1 is 0, so cos square 2 theta क्या होगा, cos square 2 theta होगा 1/2, तो cos 2 theta क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, उसका मतलब ये इसका मल्टीपल होगा, ये होगा मल्टीपल ऑफ π/4, π/4 के मल्टीपल ऑफ π/4, so therefore 2 cos square 2 theta is 1, therefore cos square 2 theta is 1/2, therefore cos 2 theta is plus minus 1/√2, is plus minus 1/√2। अब थीटा क्या था, here थीटा belongs to 0 to π/2, तो 2 थीटा के बारे में जाना पड़ेगा, so therefore 0 less than theta less than π/2, cos 2 theta is equal to plus minus 1/√2 रखो। और देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस क्यों कर रहा हूँ, ये पैटर्न है तो आप समझ जाओगे ऐसा। अब मुझे 2 थीटा के रेंज देखनी पड़ेगी, सो मल्टीप्लाई बाय, so cos 2 theta is equal to plus minus 1/√2, so multiply by 2 which is positive, so 2 into 0 less than 2 into theta less than 2 into π/2, so I end up with 0 less than 2 theta less than π, yes or no? तो 0 और पाई 0 टू पाई में है, 2 थीटा 0 और पाई के बीच में है,
कौन से क्वाड्रेंट? 0 ओपन सर्कल नॉट इंक्लूडेड, इधर पाई बाय 2 आएगा और इधर पाई बाय 2। तो ये पूरा इंटरवल, ये पूरा रेंज 2 थीटा का है। ओके, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। तो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 2 थीटा 0 और पाई के बीच में है, सो 2 थीटा इज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। देखो मैं खाली लिखता हूं एज 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, 2 थीटा इज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। cos 2 थीटा इज 1 by root 2 और cos 2 थीटा इज minus 1 by root 2। cos 2 theta, just 1 minute, cos 2 theta is 1 by root 2 and cos 2 theta is minus 1 by root 2। तो इसका मल्टीपल होना चाहिए 1 by root 2 का मतलब ये pi by 4 ये मल्टीपल है pi by 4, तो ऑब्वियसली पहला क्या आएगा यहाँ pi by 4 और सेकंड आपको पता है 3 pi by 4। तो डायरेक्टली को 2 theta is pi by 4 या फिर 0 to pi by 2 में फर्स्ट वर्ड में ऐड तो डायग्राम आपको पता है cos pi by 4 भी 1 by root 2 होता है और cos of 3 pi by 4 minus 1 by root 2 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 pi by 4 cos 2 theta is equal to 1 by root 2 के लिए pi by 4। so therefore डायरेक्टली लिख देता 2 theta is pi by 4 और 2 theta is 3 pi by 4। डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 करोगे 2 to cancel, theta is pi by 8 और इधर आएगा theta is 3 pi by 8। so theta के दो वैल्यूज आएंगे, theta के दो वैल्यूज आएंगे pi by 8 और 3 pi by 8 और अगर इधर किसी को डाउट है डिवाइडिंग बाय 2 तो 2 theta अपॉन 2 करो, थीटा चाहिए ना और pi by 4 into 1 by 2 करो और इधर कितना आएगा 2 theta by 2 is equal to 3 pi by 4 into 1 by 2। सारे जो भी मिस्टेक्स आप करते हो आई विल ट्राई टू गिव यू द पॉइंट्स जहां पे आप वो ध्यान रखो और जब आप प्रैक्टिस आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करना आपको आ जाना चाहिए, आपको वो मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए एंड आप इसकी बढ़ जानी चाहिए। सो ऑब्वियसली थीटा क्या आएगा, थीटा इज pi by 8 और थीटा इज 3 pi by 8। सो वैल्यूज ऑफ थीटा कौन-कौन सी आएंगी, देयरफॉर फाइंड, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड, ये क्वेश्चन था find the sum of all values of theta। हाँ so values of theta कितने हैं, दो values of theta, values of theta आए pi by 8 और 3 pi by 8। पूछा क्या है sum of values of theta, so sum of values of theta कितना आएगा pi by 8 plus 3 pi by 8 कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 8 से न्यूमरेटर को ऐड करो तो कितना आएगा 4 pi by 8। so answer is pi by 2, answer is pi by 2, yes answer is pi by 2। कौन सा क्वेश्चन है, yes answer is pi by 2, perfect। now अब देखो मैंने अभी क्या बोला था कि आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल हमने जो नेपियर्स एनालॉजीज किया था, हमने वो जो नेपियर्स एनालॉजीज किए थे और कोसाइन रूल, तो उसके बेस पे भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आया ना, उसके बेस पे मैंने बोला था कि लेंथी वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके सी देयर आर मेनी क्वेश्चंस, सी ट्रिगो जेईई मेंस में ट्रिगो के दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो बेटर है आप दूसरे टॉपिक्स कवर करो और जितना आपको बेसिक्स मैंने सिखाया दैट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे नेपियर्स एनालॉजीज के बेस पे मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ओके इन स्टैंडर्ड इन ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअली अ स्टैंडर्ड नोटेशंस, विद यूजुअल नोटेशंस, उन्होंने दिया है एंगल a plus b को कितने
दिया है a plus b is 120 डिग्री, फिर स्मॉल a दिया है √3 plus 1 और स्मॉल b दिया है √3 minus 1, and they are asking to find angle a is to b. कैसे करोगे? स्टैंडर्ड एंगल ट्रायंगल एबीसी की स्टैंडर्ड नोटेशंस है, यूजुअल नोटेशंस। सपोज हमारे पास ये है ए बी सी, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए √3 plus 1, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कितना है √3 minus 1। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी और ये है स्मॉल साइड सी, इन ट्रायंगल एबीसी पहले तो क्या लिखा है स्मॉल ए √3 plus 1 और बी कितना है √3 minus 1। और आपने 9th और 10th में क्या सीखा है कि हियर कैन आई से स्मॉल a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि ये √3 plus 1 है, ये √3 minus 1 है, तो a ग्रेटर देन b हुआ। और आपको पता है बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, तो स्मॉल a के सामने कौन सी साइड है, स्मॉल a के सामने कौन सा एंगल है, एंगल a। सो कैन आई से देयरफॉर एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। It is obvious angle A is greater than angle B. So therefore angle A is greater than angle B. Okay, just let me have some water. अगर आप देखो मतलब छोटे साइड के सामने here A is a small side, here A is less than, here A is greater than B. Okay, वापस समझाता हूँ, here A is greater than B. Now A is greater than B है, तो A बड़ी साइड है और B छोटी साइड है, तो स्मॉल a के सामने एंगल जो होगा छोटी बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, 9th स्टैंडर्ड का नॉलेज। सो A is greater than B, A is greater than B, that is obvious। Now अब आप देखो A plus B कितना है, A plus B कितना है 120 डिग्री इन ट्रायंगल ABC 10th स्टैंडर्ड, ये हमने A plus B plus C कितना होता है 180 डिग्री, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, so therefore 120 डिग्री plus C is 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली लिख सकते हो C is 60 डिग्री। अब देखो मैं सारी चीजें लिखता हूं, C is 60 डिग्री, small a is √3 plus 1, small b is √3 minus 1 and okay right। अब आप सोचो नेपियर्स एनालॉजी कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल a स्मॉल b और c और हमको a और b के साथ कनेक्ट करना है। कैन यू रिकलेक्ट नेपियर्स फॉर्मूला tan ऑफ a minus b by 2। मुझे यहाँ पे रेशियो ऑफ, मुझे यहाँ पे a plus b पता है, आपको यहाँ पे a plus b पता है। अगर मैं a minus b निकाल दूं, a plus b पता है, और अगर मैं a minus b निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यस a plus b और a minus b निकालने पर मुझे a और b मिल जाएगा, फिर उनका रेशियो मिल जाएगा, यस और नो। सो बाय नेपियर्स एनालॉजी कैन यू रिकलेक्ट by Napier's analogy या by Napier's formula, tan of a minus b by 2 क्या था, a minus b upon a plus b into cot of c by 2। कुछ आ रहा है? यस, तो ये पक्का होना चाहिए। therefore देखो मैं लिखता हूँ tan of a minus b by 2 is a minus b upon a plus b into cot of c by 2। so therefore tan of यहाँ पे a minus b by 2, a कितना है √3 plus 1, so this is √3 plus 1 minus √3 minus 1 whole upon √3 plus 1 plus √3 minus 1 bracket into cot of C कितना था 60 डिग्री और C कितना था 60 डिग्री, याद रखना ये C came out to be 60 डिग्री। so tan of a minus b by 2, so tan of a minus b by 2 कितना आया, see a minus b करना है तो √3 plus 1 minus √3 plus 1 ऐसा लिख देने का, और जब प्लस करना है तो प्लस के बाद वाले टर्म को कॉपी a as it is into cot of कितना आएगा 30 डिग्री। ओके थिंक अबाउट इट, ऊपर √3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 कैंसिल हो जाएगा, सो 2√3 आएगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, सो देयरफॉर
tan of a minus b by 2, tan of a minus b by 2 is equal to tan of a minus b by 2 is equal to, right? So the root 3 cancel, 2 upon 2 root 3, 2 upon 2 root 3. Cot 30 degree. What is tan 30 degree? Cot 30 degree is 1 upon root 3. Cot 30 root 3 आएगा. So correct से tan of a minus b by 2, tan of a minus b by 2 कितना आएगा? ना सोच के बता. 2 gets cancelled, root 3 1 आएगा. root 3 क्या है? root 3 root 2 है 1. So tan of a minus b by 2 is 1. So therefore can I say tan of a minus अपने थोड़ा याद रखिएगा कि जब भी हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे हमारा a ग्रेटर देन b है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं 1 को सीधा बाय 45 डिग्री ले सकता हूँ. So therefore tan of a minus b by 2 is tan of 45 डिग्री, because tan 45 डिग्री कितना होता है 1. And since a is greater than b, I can easily write a minus b upon 2 is 45 degree, because a is greater than b. Done. हो गया. a minus b मिल जाएगा, a minus b मिल जाएगा आपको, and then what you are done with, आपके पास a plus b है, solve करके a और b निकालो. So a minus b आपका कितना आया 90 degree. Therefore now see what we are having, a plus b is 120 degree, a minus b we are having 90 degree. Suppose equation number 1 है और equation number 2 है, add कर दो. See from here it's your choice how you are finding a and b. मैं add करके करता हूँ, add करने पर b भी cancel हो जाता है. 1 plus 2 a plus a. Okay, a plus a कितना आएगा? A plus a 2 है. 120 plus 90, 120 plus 90, 210 degree. So therefore a turns out to be 105 degree. 105 degree, okay. और a plus b कितना है? a plus b is 120 degree. Therefore a is 105 degree plus b is 120 degree. तो b कितना आएगा? 120 minus 105 is 15 degree. और a कितना है? 105 degree. और उन्होंने पूछा है a is to b. Okay. What is required? What is their ask? The question is, question में क्या पूछा है? Question में पूछा था a is to b. Question में पूछा था a is to b. Yes, a is to b पूछा है. Angle, see, जो question है उसमें आगे angle का symbol दिया है, मैंने angle का symbol नहीं दिया है. Okay, so not take a big issue. Therefore, required चीज है a is to b. What is a is to b? होता है a upon b. a कितना है? 105 डिग्री upon 15 डिग्री. 15 1s are 15, 6 are 90, 15 7 are 105. Calculator not allowed. So 7 by 1 answer is 7 is 2. Answer is 7 is 2. अब देखो ये पूरा क्वेश्चन किसने पूछा? Napier's analogy. So किधर दी हुई है? In the supplementary material which we have done. अब काफी बच्चे क्या करेंगे? Supplementary material बाहर का है, चलो नहीं आएगा. अरे ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, means it is not going to come suppose in your school exams, but definitely that knowledge which I am giving is going to be useful to you for JEE mains. Fair enough? Okay. और एक क्वेश्चन देखो. Right. Now one more question is. Yes. Okay. In triangle ABC with usual notations. With usual notation, b plus c, it is given. Just think about it. Guess all the right question. It is given. b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12. Is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13. Then find if cos a. Okay. If cos a upon alpha is equal to cos b upon beta. Okay, cos a upon, okay, I write the same symbol. Beta is equal to cos c upon gamma. Then
find order triplet अल्फा बीटा गामा। कैन यू थिंक कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कितना लेंथी वाला फंक्शन है? यस, cos a cos b cos c आता है, उसका मतलब कोसाइन रूल लगाना है। और कोसाइन रूल लगाने के पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, टेंस एंगल ऑलरेडी आप ये कर चुके हो इन ट्रायंगल, मतलब ये मेथड कर चुके हो इन ट्रायंगल ABC विद यूजुअल रोटेशन। व्हाट इज इट? b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13। ये गिवन है, तो ये रेशियोज है, क्या करो इक्वल निकले। सो b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13 is equal to a। रेशियोज और k greater than 0 होना चाहिए। क्यों k greater than 0 होना चाहिए? बिकॉज़ ये सम ऑफ द साइड्स है, बिकॉज़ k greater than 0 b greater than 0 c greater than 0। इक्वेट कर दो, b plus c upon 11 is k, c plus a upon 12 is k, a plus b upon 13 is k। So what do we end up getting? We get b plus c is 11k, suppose that is equation number 1, c plus a is 12k, that is equation number 2, a plus b is 13k, that is equation number 3। 1 plus 2 plus 3 करो, ऐड करो, 1 plus 2 plus 3 कर दो, तो क्या आएगा? 2a plus 2b plus 2c is equal to 2a plus 2b plus 2c is equal to कितना आना चाहिए? 11k plus 12k, 11 plus 12 कितना होता है? 11 plus 12 23, 23 plus 30 36k। ओके, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 gives this method you already would have done, b plus c। ओके, जब भी ऐड करना है, मैंने क्या बोला? ऐड करना है b plus c plus c plus a plus a plus b, पहला दूसरा और तीसरे इक्वेशन के LHS को ऐड करना है। सो b plus c plus c plus a plus b, और तीनों के RHS को ऐड करो, 11k plus 12k plus 13k, कितना आएगा? 2a plus 2b plus 2c, 2a plus 2b plus 2c is equal to 36k। Therefore divide by 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? a plus b plus c is 18k, that is equation number 4। अब a plus b कितना है? a plus b कितना है? by 3, a plus b plus c कितना आया मेरा? 18k, and a plus b कितना है? 13k। b plus c लिखो ना, b plus c, a plus b plus c is 18k, therefore अब इसको सॉल्व करो। a plus b plus c is 18k, उसमें b plus c को सब्स्टिट्यूट करो, b plus c कितना है? 11k is 18k, लिखो by result number 1। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको a मिल जाएगा, a will be 7k, a will be 7k। फिर आप सेकंड और थर्ड रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको b और c मिल जाएगा। तो a is 7k। नाउ c plus a कितना है? c plus a is 12k और a है, so c plus 7k is 12k। डायरेक्टली इस तरह a plus b is 13k, a की जो भी वैल्यू है तो आप b और c डायरेक्ट लिख सकते हैं, but here I am showing all the sets। 12k minus 7k is 5k, and a plus b क्वेश्चन कितना था? a plus b upon 13, a plus b is 13k। okay, so therefore a कितना था? 7k plus b is 13k, so b turns out to be, so therefore b is 6k। so a कितना आया? 7k, b कितना आया? 6k, और c कितना आया? 5k, और a plus b plus c 18k होना चाहिए। 7 plus 6 13, 7k plus 6 13k, 13k plus 5k 18k। यहाँ पे हमारा सम खत्म नहीं हुआ। You see the length of the questions asked in JEE Mains of maths। maths में बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, they are not very easy। okay, लॉजिक भी होता है और कैलकुलेशन भी होता है, बहुत ज्यादा स्टेप्स लगाने पड़ेंगे आपको। cos a by cosine रूल लगाओ, by cosine rule in triangle ABC, in triangle ABC cos a का फॉर्मूला क्या था? b square plus c square minus a square upon 2 into b into c, 2bc। ओके, अब क्या है? b को सॉल्व करोगे 7a का स्क्वायर कॉमन स्टफ, सो cos a। अब कुछ बच्चों को मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये नहीं समझ में आएगा। 6k का स्क्वायर, ओके विल डू दिस वे, प्लस c, तो इधर लिखते हैं cos a is कितना है? 6k
द होल स्क्वायर प्लस c कितना है 5k द होल स्क्वायर माइनस a कितना है 7k द होल स्क्वायर अपॉन 2 into 6k into 5k. ऐसे खुद लिखना है but so you need to be very fast. Cos a is b square, so 36k square you should be right. 36k square plus c square मतलब 25k square minus k square मतलब 49k square upon 2bc. So 2 into 6 into 2 so 60k square. So cos a turns out to be 36 plus 25 कितना होता है 36 plus 20 56 61 minus 49 12k square upon 60k square. So cos a becomes 1 by 5. That is result number say 1. अब cos b निकालना cos c निकालना है. Okay, cos b c square plus a square minus b square upon 2c. खाली फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं है किड्स. cos b c कितना है 5k the whole square plus a कितना है 7k the whole square minus b कितना है 6k the whole square whole upon 2 into 5k into 7k. मैंने क्या बोला कि अवॉइड करने का ऐसे नहीं लिखने के. so what you will be doing cos c भी निकालना है. what I can do is that एक कोसाइन रूल लगा के cos a कितना आएगा cos b कितना आएगा कितने स्टेप्स कम हो जाएगा. if I do that way cos b c square मतलब 25k square plus 7 plus c square plus a square 7k 49k square minus कितना आएगा minus b square b कितना 6k का स्क्वायर कितना होता है 36k स्क्वायर whole upon 2 into 5 divided by 70k square. So therefore cos b becomes 49 plus 25. या फिर ऐसे करो 49 minus 36 कर दो. what is 49 minus 36? 49 minus 36 30 होता है. 30 plus 25 is 38k square upon 70k square कट गया. So cos b becomes 38 upon 70 उसे उड़ा दो तो cos b आया 19 upon 35. इसको रिजल्ट करो. हमने खाली cos a actually they should have kept the sum at finding cos a or cos b or cos c, but no, see they are expecting you to solve a 4-mark question. Okay, and cos c क्या है? cos c is a square plus b square minus c square upon 2ab. cos c a कितना था? ये था 7k का स्क्वायर प्लस b कितना था 6k का स्क्वायर माइनस वो था 5k द होल स्क्वायर होल अपॉन 2 into 7k into 6k. cos c 749k square plus 636k square minus 25k square whole upon 7 2s are 14 7 2s are 14 14 6s are 84k square. कैसे करो 36 minus 25 कितना आएगा 11 और वहां पे है 49. so 49 plus 11 60k square आएगा. so cos c 36 so minus 25 5 plus 6 11 60k square upon 84k square. k square कैंसिल हो गया तो cos c कितना आया cos c आया 60 upon 84 60 upon 84. तो किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करो 12 5 are 12 5 are and 12 7 are. cos c आया 5 by 7. cos a क्या लिखा था मैंने cos a 1 by 5 आया था. let me just verify cos a 1 by 7 I believe 1 by 5. cos a था 36 plus 25 36 plus 25 कितना था 56 61 60 12 equal upon 2 into 1 by 5 था. तो cos a था 1 by 5 cos b हमारा कितना आया 19 by 25. इधर इक्वेशन नहीं छोड़ा है और cos c is 5 upon 7. let me check whether the ones are right again.
cos A is I am getting 1 by 5, cos B I am getting 19 by 35 and cos C I am getting as 5 by 7. Yes, right. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? cos A upon alpha is equal to cos B upon beta is equal to cos C upon gamma. तो पता है बच्चों क्या करना पड़ेगा? कि तीनों को सेम डिनोमिनेटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 और 7 का एलसीएम क्या है? 5 एलसीएम ऑफ 5, 7 is 35. तो आपको cos A, cos B, cos C सबका डिनोमिनेटर 35 करना पड़ेगा. तो cos A क्या हो जाएगा? 5 into 7 कितना आएगा? 5 by 35. cos B उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 35 है, so 19 upon 35. और cos C वो भी कितना है? 7 5 25 upon 35. yes or no? अब cos A upon alpha is equal to cos B upon beta. तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसको लिख देता हूँ cos A upon 5. आप समझे? इसमें भी काफी बेसिक नॉलेज चाहिए आपको. Therefore, cos A upon 5 is 1 by 35. Cos B upon 19 is how much? Cos B upon 19 is 1 by 35. Cos C upon 35 is equal to 1 by 35. So can I say all are equal? Now you get correct. इसके साथ cos A upon 5 is cos B upon 19 is equal to cos C upon is equal to cos C upon 25, which is 1 by 35. So can you get the answer of alpha, beta, gamma? You understood कितना लेंथी क्वेश्चन है? मैंने क्या बोला? लेंथी, टफ नहीं है. cos A upon 5 is equal to, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ्स में आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए और काफी रिवीजन चाहिए. कंपेयर करो cos A upon alpha, compare with cos A upon alpha is equal to cos B upon beta is equal to cos C upon gamma. Alpha मिल गया, beta मिल गया, gamma मिल गया, and then you just write the ordered trend line. Clear? So आपने देखा ये दो क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, एक दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आज सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, they are not questions asked in JEE Mains or AIR EEE like from previous year of 2002 से 2013-14. No, जो भी क्वेश्चन मैंने आज किए वो 2018 और 2019 के क्वेश्चंस हैं, recent क्वेश्चंस हैं. Alpha is 5, alpha is 5, beta turns out to be how much? Beta is 19 and gamma is 25. So alpha, beta, gamma. Therefore, alpha, beta, gamma is 5, 19, 25. Next question देखते हैं ऐसा. Understood चलिए अच्छे तरीके से. Just 1 minute. Okay, now. और क्वेश्चन देखते हैं. You can say some really nice questions. Okay. Now, उस टाइम वाला भी हो गया, now range वाला भी हो गया है. Okay. Now, okay. This is a question asked. This is you can say one of the most popular questions. And you see, इसका लेंथ भी देखना. ये भी कितना लेंथ है? If cos of alpha plus beta, if cos of alpha plus beta is 3 by 5, sin of alpha minus beta is 5 by 13, comma 0 less than alpha comma beta less than 0 less than alpha comma beta less than 5 by 4, then find tan of 2 alpha. अब आप जरा सोचो कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे. ओके, एंड यस दिस इज अ रियली वेरी वेरी कैलकुलेशन. ओके, these are all you can say the questions which used to come
for 3 or 4 marks. These are questions which used to come for 3 or 4 marks in previous board exams. Okay, हमको यहाँ पे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है वो जरा देख लेते हैं. Cos of अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/5 और sin of अल्फा माइनस बीटा दिया है 5/13. ओके, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो और sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो तो क्या करने का, cos ऑफ एंगल है तो sin निकाल देने का, sin ऑफ एंगल है तो cos निकाल देने का. एंड 0 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 5/4. पर हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है वो हमको पता नहीं है. तो देखो मैं कैसे करूँगा. हियर इसका मतलब क्या होता है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन 5/4 और 0 लेस देन बीटा लेस देन 5/4. तीनों को ऐड करो. ऐड 1 and 2. ऐड 1 2 या 1 plus 2 gives 1 plus 2. 0 plus 0 less than alpha plus beta. You can add when they are having the same inequality. 5/4 plus 5/4. What is 5/4? 45 degree. 5/4. So 5/4 plus 5/4. Common denominator 5 plus 5. 2pi. 2pi/4 is 5/2. So 0 less than alpha plus beta. Okay, less than 5/2. So therefore याद रखने का 0 less than alpha plus beta less than 5/2. That's equation number 3. अब मुझे alpha minus beta चाहिए. तो उधर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. कुछ बचेगा नहीं. 0 minus 0 alpha minus beta 5/4 minus 5/4. नहीं ऐसे नहीं कर सकते. माइनस बीटा चाहिए ना. 0 less than beta less than 5/4. तो माइनस बीटा के लिए क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 which is less than 0. नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब what you end up getting 0 greater than minus beta greater than minus 5/4. So what you end up getting minus 5/4 less than minus beta less than 0. That is equation number 4. और अल्फा के बारे में क्या कहा है, 0 less than alpha less than 5/4. That is equation number 1. इन दोनों का ऐड 4 plus 1 करो minus 5/4 प्लस 0. यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम है इसलिए माइनस बीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस 5/4. कॉमन से करो माइनस 5/4 और माइनस बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है. तो अल्फा माइनस बीटा का हमको रीजन पता चल जाएगा. सो व्हाट वी एंड अप गेटिंग माइनस 5/4 लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 5/4. पहले अल्फा प्लस बीटा मेक दिस एज फिफ्थ क्वेश्चन. तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा 0 to 5/2 ये है. नाउ 0 लेस देन अल्फा प्लस बीटा लेस देन 5/2 ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था. एंड cos लिया था कि sin लिया था, क्वेश्चन में cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिया. cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिया. cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना था 3/5. तो क्या निकालोगे सबसे पहले sin. सो sin स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 minus cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा. वो हो गया 1 minus sin. कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, sin स्क्वायर थीटा इज 1 minus cos स्क्वायर थीटा. सी ये सारे फॉर्मूलास आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. तो कितना आएगा 1 minus 9/25. So sin square of alpha plus beta becomes 25 minus 9 125. डायरेक्ट क्या आता है, sin square of alpha plus beta is 16/25. alpha plus beta कौन से क्वाड्रेंट में है 0 to 5/2. 0 to 5/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. तो sin of alpha plus beta is greater than 0. तो sin of alpha plus beta कितना आएगा 4/5. यस, अभी तो हमने खाली sin of alpha plus beta निकाला. यस, अब सेम लॉजिक से निकालना पड़ेगा
अल्फा माइनस बीटा में क्या था? ओके, नाउ हियर खाली बोल देते हैं माइनस पाई बाय 4 लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन पाई बाय 4, ध्यान से। ओके, दिस इज नाइस कंडीशन। फिर एंड उन्होंने साइन दिया था, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना दिया था? 5/30। ओके, so cos square of अल्फा माइनस बीटा विल बी, सो हमको cos निकालना है एंड cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या है? 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल बी 1 माइनस पाई बाय 13 का स्क्वायर। So cos square of alpha minus beta will be 1 minus 5 by 13 का square, 1 minus 25 upon 169। इसे लेने के बाद what you end up getting? 144 upon 169। So 169 upon 25 upon 169 is 144 upon 169. That is cos square of alpha minus beta. Okay. Now minus pi by 4 less than alpha minus beta less than pi by 4। आइए रिजल्ट हमारा, तो minus pi by 4 किधर होता है? ओके, minus pi by 4 less than alpha minus beta less than pi by 4 कहाँ पे होता है? pi by 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। minus pi by 4 कहाँ था? मल्टीपल ऑफ pi by 4 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सुनो, इधर 0 यहाँ पे पाई बाय 2 मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आता है माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 4 इज हियर एंड माइनस पाई बाय 4 इज हियर। सो अल्फा माइनस बीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? अगर मैं साइन, एक्चुअली यहाँ पे साइन बीटा पॉजिटिव, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है और अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव है, इसलिए मैं सीधा कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर हम खाली cos के बारे में लिखते तो अल्फा माइनस बीटा का ये इंटरवल है, इस पर से अगर मैं जाऊं माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 ये सब तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट cos कैसा होता है? a s t c, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। सो अल्फा माइनस बीटा, therefore cos of alpha minus beta is greater than 0। तो सीधा स्क्वायर रूट क्या लिखोगे? sin of alpha minus beta का 12/13, 12/13। कभी कभी वो इंटरवल में हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, तो नेगेटिव रूट सिलेक्ट करना पड़ता है। सो therefore cos of alpha minus beta is 144/169 and cos of alpha minus beta is positive। so कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे? पॉजिटिव। So cos of alpha minus beta is 12/13, sin of alpha minus beta था 5/13, फिर था cos of alpha plus beta, cos of alpha plus beta था 3/5 और sin of alpha plus beta we calculated as 4/5। पूछा गया है tan of 2 alpha, ठीक कैसे करोगे? tan of 2 alpha, 2 अल्फा का क्या कनेक्शन है? 2 अल्फा का क्या कनेक्शन है? द सेम, ये सेम ऐसा रखते हैं, लेकिन आज फाइंड tan of 2 बीटा, लेकिन आज फाइंड cot of 2 अल्फा, लेकिन आल्सो आज cot of 2 बीटा। कैसे करोगे? कैसे करोगे? think okay now tan थीटा क्या होता है? ओके, tan 2 अल्फा को बताता हूं। tan 2 अल्फा पूछा, tan 2 अल्फा पूछा। tan 2 अल्फा एक्चुअली होता है tan of व्हाट इज 2 अल्फा? कैन आई राइट 2 अल्फा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये सो हां, और ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ओके, tan of 2 अल्फा पहले तो मैं यहां पे sin of अल्फा प्लस बीटा, cos of अल्फा प्लस बीटा है पहले, and tan theta is sin theta upon cos theta। So therefore tan of
अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा डायरेक्टली एवरीथिंग कॉमन डिनोमिनेटर 5 कट जाएगा, 4/3 आएगा, which is 4/5 on 3/5. So therefore tan of alpha plus beta is 4/3. पहले just calculate कर, और tan of alpha minus beta कितना आएगा, sin of alpha minus beta upon cos of alpha minus beta कितना आएगा 5/13 और 12/13 which is 5/12. So therefore tan of alpha minus beta आया 5/12 और tan of alpha plus beta आया 4/3. tan to alpha मैंने हिंट दिया आपको, tan to alpha क्या कनेक्शन, टू अल्फा का क्या कनेक्शन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के साथ, वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दोनों ऐड करो मिल जाएगा। और ये कौन से फॉर्म में हो गया ये फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला tan of x plus y, इसकी जगह पे क्या दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, y की जगह पे क्या दिख रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan of अल्फा प्लस बीटा प्लस tan of अल्फा माइनस बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan of अल्फा प्लस बीटा इनटू tan of अल्फा माइनस बीटा। Understood? Tan to alpha. So that's the way. See, that's why I told these are in maths. The choice of question which you attempt for JEE mains is very important. जो आता है उसको आपको बहुत जल्दी और स्पीडली खत्म करना पड़ेगा और उसका आपका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की तो फिर यू आर गॉन। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगा है, हिट कॉस, कौन सा फॉर्मूला लगा है, tan of x plus y, tan of x plus y is tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। देखो सारे फॉर्मूलाज एकदम पक्के आने चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर पाओगे। therefore tan of 2 alpha, tan of alpha is beta 4/3 और वहां पे है 5/12, so 4/3 plus 5/12 whole upon 1 minus 4/3 into 5/12. Don't cancel 4 1s or 4 3s please. What is the technique? Common denominator 12 और 3 का कॉमन 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है 36, तो 12 इधर जाने दो, 12 4s are 48 प्लस 5 3s are 15 और 12 3s are 36 ऐसे आया। और यहाँ पे क्या आएगा 12 3s are 36 minus 5 4s are 20 whole upon 6, तो कितना आएगा tan 2 alpha, tan therefore tan of 2 alpha is the solution of the calculation and you get the final answer. So therefore tan 2 alpha becomes 63 by 36 upon 36 16 by 36. So what is the answer tan 2 alpha? 63 by 16. 12 4s are 48 48 48 plus 15 16 divided 12 is 26 minus 20 16 is 60. So yes 63 by 16, yes 63 by 16 is the answer. That's what it is. Yes, so understood. Now suppose उन्होंने यहाँ पे सम खत्म हो गया, अब suppose tan 2 बीटा पूछा हो तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, tan of alpha plus beta tan of alpha minus beta को निकालना है tan of 2 बीटा। कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को क्या करेंगे तो 2 बीटा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सोचो इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो tan of 2 बीटा कितना आएगा, tan of alpha plus beta minus tan of alpha minus beta upon 1 plus tan of alpha minus tan of alpha plus beta into tan of alpha minus beta। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan of x minus y is tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y। x की जगह पे alpha plus beta is x and alpha minus beta is y, तो tan of 2 beta कितना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो कितना आएगा 12 4 48 48 minus 15 और यहाँ पे 12 3 36 36 प्लस। ओके,
So tan 2 beta becomes yes or no, tan of 2 beta will become 48 minus 15, 33 upon 36 whole upon 56 by 56. 56 by 56, so you end up getting 33 upon 56. Same way you have to think of cot of 2 alpha and cot of 2 beta. अब देखा कितने लेंथी है, तो that is what tan of 2 alpha ही पूछा था. Still I showed you how to get tan of 2 beta. Just a minute. So understood? और हाँ, actually मैं बहुत लेंथी सॉल्यूशन नहीं देना चाहता था, तो tan of 2 alpha क्या था? Actually ये सॉल्यूशन अगर क्लास में समझाना हो, तो how I will do? I will write tan of 2 alpha is tan of 2 alpha. खाली नोट समझो. tan of 2 alpha पूछा था, तो tan of 2 alpha क्या होता है? tan of alpha plus beta plus alpha minus beta. तो ये कितना आएगा? tan of alpha plus beta plus tan of alpha minus beta लगा दिया whole upon 1 minus tan of alpha plus beta into tan of alpha minus beta. I hope I'm clear. तो मतलब tan 2 alpha एक्चुअली इस फॉर्मूला से आएगा, तो आपको पता चल गया. तो tan 2 alpha निकालना है, तो उसके लिए मुझे tan of 2 alpha को मैं कैसे लिखूंगा? alpha plus beta plus alpha minus beta. और फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया? Because tan of x plus y, because tan of x plus y is tan x plus tan y whole upon 1 minus tan x tan y. ठीक है? What my point is, my simple point is, ये tan of 2 alpha है, tan of 2 alpha ये है. तो actually I was thinking कि पहले मैं समझाऊंगा तो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट मेथड समझाया. और आप समझो. तो जब हम सब कुछ देखें तो tan 2 alpha, और क्वेश्चन में क्या था? alpha plus beta और alpha minus beta. tan of alpha plus beta plus alpha minus beta, और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया. तो tan of 2 alpha कैसे आया? मतलब tan of 2 alpha किस पे बेस्ड है? tan of alpha plus beta और tan of alpha minus beta. इसके लिए sin of alpha plus cos of alpha plus beta में से sin of alpha plus beta निकालो, उन दोनों का रेशियो ले लो, तो tan of alpha plus beta मिलेगा. cos sin of alpha minus beta में से cos of alpha minus beta निकालो, sin of alpha minus beta और tan of alpha minus cos of alpha minus beta का रेशियो लेने से आपको क्या मिल जाएगा? tan of alpha minus beta. सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा. एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, और वो दोनों को प्लस करना माइनस करना, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने क्या बोला, साइन ऑफ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो 99.9999% cos of alpha plus beta होता है, तो sin of alpha plus beta निकाल देने का. sin of alpha minus beta है, तो cos of alpha minus beta निकाल देने का. फिर उसके बाद tan 2 alpha whatever is required उसके काम करना. ठीक है? अंडरस्टूड? नाउ understood? So such a nice question. Okay, then now one more such question. Let me do one more such question. एकदम अलग टॉपिक हो, मतलब लाइक अलग ही एप्लीकेशन है. पर्सनली आई बिलीव सो इफ 3 pi by 4 less than alpha less than pi, then find square root of and find square root of cosec square alpha plus 2 cot alpha. This was asked in I believe this type here same question was asked in this year JEE mains 2020 January में जो एग्जाम पेपर थी JEE mains की. I believe यही क्वेश्चन था, थोड़ा कुछ इधर उधर फर्क होगा, पर यही मेन सम था. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, समझ से करना है. 3 pi by here 3 pi by 4 less than alpha less than pi है. 3 pi by 4 इसका मल्टीपल है, सोचो pi by 4
इधर होता है और 3 पाई बाय 4 इधर होता है। तो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4, इधर 0 होता है, इधर पाई बाय 2 होता है और इधर पाई है। तो यहाँ पे अल्फा 3 पाई बाय 4 और पाई के बीच में, तो समवेयर ओवर हियर, मतलब right, this is the region of alpha. So therefore alpha is in second quadrant. खाली चलिए, alpha is in second quadrant, या ये region है, मैंने आपको बताया ये पाई ओपन सर्कल आएगा इसके। So ये हमारा पाई का इंटरवल और अल्फा का इंटरवल है। 3 पाई बाय 2 बताने की जरूरत, मतलब 3 पाई बाय 2 का कोई यूज नहीं है, खाली ये इंटरवल। Now, जिसका स्क्वायर रूट पूछा है, इसके जाओ तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आपको इसका आंसर नहीं आएगा। व्हाट इज टेन साइड का फॉर्मूला पहला, व्हाट इज कोसेक स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। कैन आई राइट दिस एज 1 स्क्वायर प्लस cot alpha का square plus 2 times 1 into cot alpha, yes or no? So square root of 1 plus cot alpha the whole square, yes or no? A square plus b square plus 2ab। अब जो मैंने रिवीजन ऑफ पहले क्लास में आपको बताया था और फंक्शंस या जब हमने फंक्शंस किए और काफी कुछ क्वेश्चंस किए, तब मैंने आपको क्या सब सिखाया था। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होता है, मॉड a, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मॉड a, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड x। तो रूट ऑफ 1 प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस cot अल्फा, मॉड ऑफ 1 प्लस cot अल्फा बाय because क्या थियर लगा, because स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, मॉड x। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 1 प्लस cot अल्फा और उनका आंसर आ जाएगा। बोले ऑप्शन में है 1 प्लस cot अल्फा, सैकड़ा मिलेगा 0। यहां से स्टार्ट किया, पहला फॉर्मूला क्या आना चाहिए, cos x स्क्वायर थीटा tan sin का 1 प्लस cos थीटा परफेक्ट स्क्वायर करना आना चाहिए और रूट ऑफ x स्क्वायर इज मॉड x। 11th का तो अभी तक कहीं भी नामो निशान ही नहीं है ना, therefore ये उसका स्क्वायर रूट, therefore स्क्वायर रूट ऑफ cos x स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा इज मॉड ऑफ 1 प्लस cot अल्फा। अब देखो क्या रिलेवेंस है उस कंडीशन का और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। 3 पाई बाय 4 लेस देन अल्फा लेस देन 5, 3 पाई बाय 4 लेस देन अल्फा लेस देन 5, कैन आई राइट देयरफॉर 3 पाई बाय 4 लेस देन अल्फा। पुट आउट। अब इसमें मुझे कॉट लगाना है, अब इसमें मुझे कॉट लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन याद होना चाहिए। tan क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन इन एवरी क्वाड्रेंट, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन इन एवरी क्वाड्रेंट, यस और नो। मैंने क्या बोला था, tan फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एवरी क्वाड्रेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट इज डिक्रीजिंग इन एवरी क्वाड्रेंट। दूसरा, जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन हटाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करो या डिक्रीजिंग फंक्शन हटाओ, इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो 3 पाई बाय 4 लेस देन 3 पाई बाय 4 लेस देन अल्फा है, तो मैं इसमें कॉट लगाता हूं। सो कॉट ऑफ 3 पाई बाय 4 एंड तो 3 पाई बाय 4 इज लेस देन अल्फा, आई कैन राइट। तो इस पे अगर मैं कॉट लगाता हूं, कॉट ऑफ 3 पाई बाय 4 और यहां पे मैं लिखता हूं cot अल्फा। कॉट कैसा फंक्शन है, cot is decreasing in every quadrant। तो जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करें हटा, इनइक्वालिटी में चेंज करें, और डिक्रीजिंग फंक्शन में अप्लाई करूं या हटाओ, इनइक्वालिटी में चेंज। यहां पे मैं cot डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, so that's why ग्रेटर देन। अब cot ऑफ पाई बाय 4, cot ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है, cot 45 डिग्री 1, 3 पाई बाय 4 उसका मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 इन सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो। सो cot ऑफ 3 पाई बाय 4 इसका मतलब अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, उसका भी नॉलेज चाहिए हमको जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया। सो cot ऑफ 3 पाई बाय 4 कितना आता है, -1। सो -1 इज ग्रेटर देन cot ऑफ बिग cos, cot ऑफ 3 पाई बाय 4 इज -1, therefore okay, so therefore -1 को साइड लेके जाओ तो 0 ग्रेटर देन 1 प्लस
cot अल्फा, उसका मतलब 1 प्लस cot अल्फा कैसा आया, लेस देन 0। 1 प्लस cot अल्फा कैसा आया, लेस देन 0। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, 1 प्लस cot अल्फा इज लेस देन 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ, क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा कितना था, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस cot अल्फा। नाउ कैन यू रिकलेक्ट मॉडुलस फॉर x ग्रेटर देन 0, मैंने आपको क्या सिखाया था, या fx में मैंने सिखाया था, मैंने दो चीजें सिखाई थी कि if नोट करके फॉर x ग्रेटर देन 0 या फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, -x। और हमने fx में ही मैंने बोला था लिखने को कि फॉर fx लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ fx क्या होता है, -fx। तो यहां पे 1 प्लस cot अल्फा कैसा है, लेस देन 0, therefore as 1 plus cot alpha is less than 0, modulus of 1 plus cot alpha क्या आएगा, minus of -1 into 1 plus cot alpha। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता है आंसर आएगा -1 into minus cot alpha। So square root of cosec square alpha plus 2 cot alpha is which is modulus of 1 plus cot alpha and 1 plus cot alpha is less than 0, तो सीधा क्या लिखेगा, minus of -1 into cot of -1 into 1 plus cot alpha and then multiply -1 to each of the terms and you get the final answer। तो आप देखो ये सब है बहुत छोटा and if you are having the knowledge then it can be finished within, you can say 1 minute। If I have to finish it by myself, I will do it that much fast. But how many students will understand if I give that kind of solution? Hardly 1 or 2. इसलिए सब कुछ लिखना पड़ता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, -1 into 1, -1 minus cot alpha। So answer is -1 minus cot alpha। इसमें आपको नॉलेज चाहिए, root of x square mod x, mod x होता है -x और x is 0, ये भी आपको बताना चाहिए, cosec square आपको का फॉर्मूला बताना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए और cot of 3/4 का नॉलेज होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, a square plus b square plus 2ab is equal to b whole square, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें आप देखो कितना सारा एप्लीकेशन। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द IIT एंट्रेंस एग्जाम्स, IIT फील्ड उसको बोलते हैं, ओके, अभी like 7 to 10 years back। So if this is question asked in JEE Mains 2020, the same question was asked in NDA, this same question has come in IIT entrance, this IIT screening also। Okay, that's it for today। Thank you। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप ये सॉल्व करो, नो नो, थिंक दैट these questions are extra questions which are given as assignment and I am solving all the questions। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको नहीं आता है चलेगा, पहले करके आप सॉल्व करो और दो बार इसको सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक के सम्स 3 बार और ये 2 बार, या टेक्स्ट बुक के सम्स को 2 बार और ये आप भी 2 बार करो, और जो सम आपको नहीं आता वो और एक बार प्रैक्टिस करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।